गर्मियाँ आते ही द फर्स्ट माइंड मैथ अ वुमन गो थ्रू इज हाउ टू प्रिवेंट दोज sneaky little bugs to reach down there. Been there, felt that burning and horrible amount of discomfort with loo visits too. Well, why do they happen? How do that happen? And actually what can we do to prevent those recurrences? ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ कब तक घर पे ट्रीट कर सकते हो, कब हॉस्पिटल में जाना है, सारी चीज़ों के बारे में। सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। Hi, I'm Dr. Mitali Rathod, consultant OBGYN practicing since 5 years, and on this beautiful YouTube channel we talk about periods, hormones, reproductive health and so much more. So make sure you hit the subscribe now. So first things first, what is actually UTI? It's a urinary tract infection, no brainer. But there are so many women out there which I have seen with my practice. They have complicated UTI with vaginitis or vaginal infections. सो देखो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको ऐसा होगा दैट देयर हैज़ बीन न्यूली ऑनसेट लोअर एब्डोमिनल पेन, फ्रीक्वेंट वॉशरूम विजिट्स, वॉशरूम में जाते जाते ही आपको यूरिन निकल जाता है, न्यूली ऑनसेट अर्ज इनकॉन्टिनेंस, खांसते खांसते या स्नीज करते करते आपको यूरिन पास हो जाता है, न्यूली ऑनसेट स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, लोअर एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बर्निंग, too dark urine, sometimes even presence of blood in urine, back pain, nausea, vomiting, fever, ये सारी चीजें होती हैं. As compared to that, for vaginal infections, there is going to be presence of intense itching down there, along with foul smelling or abnormal kind of discharge from down. If you are a cisgender woman, trust me, आपके दिमाग में ये सवाल एक बार तो आया ही होगा that why actually me? So that happens because of 3 main reasons. A, because we are having shorter urethral length. अभी आप सोच रहे होंगे कि ये किस चिड़िया का नाम ले लिया, तो सुनो बताती हूँ. We have one pair of kidneys which are situated somewhere over here at the back below the lower rib line, which are going to filter all the blood which is present inside our body, and that will collect a waste material which is what we call as urine. यूरिन जो होता है किडनी से फिल्टर होके आगे कलेक्ट होता है इन अ थैली लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ व्हाट वी कॉल एज यूरिनरी ब्लैडर. दैट इज़ माय फेवरेट ऑर्गन टू आफ्टर यूट्रस. सो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैवल है वो होता है एक पाइप की मदद से. पाइप का नाम होता है यूरेटर विच आर 18 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, आफ्टर कलेक्टिंग द यूरिन, व्हेन यू आर गोइंग टू फील दो सेंसेशन, अर्ज सेंसेशन, you are going to pass that urine with a small passage which is 4 to 5 centimeter in length, which opens at vulva, which is what we call as urethra. ठीक है, the basic anatomical difference between men and women is that male urethra is around 18 to 20 centimeter in length, as while the female urethra is going to be 4 to 5 centimeter in length. तो सोचो बैक्टीरिया है, उसको 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करना है या उसको 18 to 20 सेंटीमीटर ट्रैवल करना है. सोचो कि आप मुंबई में हो और आपको मुझसे मिलने के लिए अहमदाबाद में आना है. ठीक है, आप एक फ्लाइट लेके मुझसे मिलने आते हो वर्सेस आप ट्रेन में घिस घिस के आते हो. सो बैक्टीरिया जो है वो फ्लाइट में बैठ बैठ के हम पे अटैक कर रहे हैं दोस्तों. B, because of cross contamination. To those who don't know the basic anatomical difference of us down there, we have 3 different holes down there, anterior to posteriorly. आगे से पीछे की तरफ we have pee hole, vagina and butt hole. All of them are too much warm, moist and rich and having their own microbes. So थोड़ा सा infection यहाँ वहाँ लग ही जाता है. C, because of sexual intercourse. While you are using condoms and even if you are don't, there has been lot of changes in the microbes which takes place while you are getting intimate with your partner. Along with that, there will be presence of condoms and spermicides and lubes and gels and spits and perspiration and pubes. So all of these things takes place. Plus, don't forget that we have a whole 4 to 4.5 inches canal down there. That is the basic anatomical difference. Men do not have such canal. So as a canal, we are going to store those things, and which is why if after getting intimate, if you aren't maintaining proper hygiene, there are more chances for you to get those infections. इसके साथ साथ पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, डायबिटीज, डिहाइड्रेशन और किडनी स्टोन्स की वजह से भी आपको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ टू डिटेक्ट दैट यू आर एक्चुअली हैविंग यूटीआई. वेल, अगर सच में बोलो तो इतना कुछ हो रहा होगा
भाग भाग के बाथरूम जा रहे होंगे, बर्निंग हो रहा होगा, यूरिन का कलर, एवरी सिंगल थिंग इज गोइंग टू चेंज। सो डिपेंडिंग अपॉन योर साइंस एंड सिम्टम्स, ट्रस्ट मी, पता चल ही जाएगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाओ, यूरिन टेस्ट कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, उससे भी पता चल ही जाएगा। यूरिन टेस्ट करवाने में एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको स्टरीलाइज कंटेनर लेना है। जिन किसी से भी आप कंटेनर ले रहे हो, मेक श्योर यू आस्क देम दैट क्वेश्चन कि स्टरीलाइज्ड है या नहीं। उसके बाद बाथरूम में जाके यू हैव टू सेपरेट योर लेबियल लिप्स, you have to clean it from anterior to posteriorly, you have to let go of the initial stream of your urine, थोड़ा आगे पी करके जाने देना है, मिड स्ट्रीम यूरिन आपको सैंपल करना है, उसके बाद उसको अच्छे से स्टोर करके विद इन दैट 2 आवर ओनली यू हैव टू सबमिट इट टू द लैब। 2 घंटे के बाद अगर आप टेस्ट करोगे बैक्टीरिया का तो वो गलत निकलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हाउ टू एक्चुअली प्रिवेंट यूटीआईज? फर्स्ट, ड्रिंक मोर वाटर। आई नो ये तो सभी लोग, सभी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, सभी ब्यूटी गुरु सब बोल ही रहे हैं पानी ज़्यादा पियो, ज़्यादा पियो, ज़्यादा पियो, बट एक्चुअली कैसे पीना है? सो मेक श्योर कि आप 1 से 2 लीटर जितना पानी पिए। अगर वो वाला चीज़ आपको याद नहीं रहता है, देन मेक श्योर सुबह में उठने के बाद यू हैव 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर, ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे बाद पियो, खाना खाने के 1 घंटे पहले पियो, खाना खाने के 2 घंटे बाद पियो, एंड एवरी सिंगल टाइम वंस यू विजिट द लू, मेक श्योर यू हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। सो ऐसे आपकी बॉडी में पूरा वाटर लेवल जो है वो ऑल थ्रू आउट द डे बैलेंस रहेगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पूरे दिन पानी पीते ही जा रहे हो और वॉशरूम विजिट करते ही जा रहे हो। अलॉन्ग विद दैट, ये इतनी ज़्यादा गर्मी अभी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकती, तो ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चांसेस भी बहुत होते हैं। So make sure in a glass of water you add 1 pinch of sea salt and consume it. There are lots of electrolyte drops are also available in the market, वो भी आप use कर सकते हो। वो नहीं करना है देन घर में भी with oranges और lemons और मौसम्बी या कोई से भी watermelon especially which is available in this season, you can make your own infused water as well. वो अगर आप अच्छी तरीके से पूरे दिन सिप करते रहोगे, यू आर गोइंग टू फील सो मच फ्रेश एंड एनर्जाइज्ड। सेकेंड, डोंट होल्ड यूरिन फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। घर पे हो, हॉस्पिटल में हो, बाहर हो, प्लीज़ 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 डोंट होल्ड यूरिन, ओके? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉयलेट सीट से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ट्रस्ट मी वो नहीं होता है। इफ़ योर यूरेथ्रा कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टॉयलेट सीट, तभी वो इन्फेक्शन डायरेक्टली फैलता है, अदरवाइज टॉयलेट सीट से इन्फेक्शन नहीं फैलता है। सारे लोगों ने मार्केटिंग गिमिक्स खेल रखे हैं हमारे साथ। फिर भी अगर आपको हाइजीन के लेवल पे भी ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, देन मेक श्योर यू यूज़ द इंडियन टॉयलेट्स इफ़ यू आर विजिटिंग द लू आउटसाइड, ओके? अगर आपका घर का टॉयलेट नहीं है तो इंडियन को ज़्यादा प्रेफर करो। अगर वेस्टर्न ही अवेलेबल है देन यू कैन cover the toilet seat with proper paper rolls or something. We have such kind of toilet cover sheets are also available, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। स्क्वाट करके, आधा होल्ड करके मत यूरिन पास करो, देर विल बी टू क्लेंचिंग क्लेंचिंग ऑफ मसल्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर, तो पोस्ट वॉइडल यूरिन का जो है वो अमाउंट बढ़ जाएगा, पूरा ब्लैडर खाली ही नहीं हो पाएगा, पूरी थैली खाली ही नहीं हो पाएगी, ठीक है? सो उससे अच्छा ये है दैट यू यूज़ अ पी बडी, ओके? ऐसा दिखता है वो, सो यू कैन गेट दैट फ्रॉम अमेजोन एज वेल। वॉट टू डू अगर आपको यूटीआई हो गया है तो? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपकी सिम्टम्स बहुत ही माइनर है, थोड़ा सा ही डिस्कम्फर्ट हो रहा है, थोड़ी ही अर्ज और फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, देन मेक श्योर यू टेक प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेट वेल एंड लोड ऑन विटामिन सी। विटामिन सी के कैप्सूल्स आते हैं वो ले सकते हो, होल फूड विटामिन सी भी ले सकते हो, आंवला पाउडर ले सकते हो, लेमन जूस भी पी सकते हो। अगर आपको फीवर है और सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सिवियर है, फिर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा और एंटीबायोटिक का कोर्स है वो ख़त्म करना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू यूटीआई, प्लीज़ 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 डोंट सेल्फ डायग्नोज, ओके? आप वो डायग्नोज हमेशा नहीं कर सकते, डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। सेकेंड, फार्मासिस्ट या डॉक्टर गूगल के पास ना जाए, ठीक है? उनको पता नहीं होता है कि आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, कितना डोज कैलकुलेट करके ले देना है, साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ है। मैंने किसी भी फार्मेसी वाले को इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हुए नहीं देखा है, वो सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं।
Make sure you finish the dose of antibiotic which your doctor has prescribed. अगर आप ऐसा करोगे, 2 दिन खा के आपके सिम्टम्स चले गए हैं तो मेडिसिन छोड़ दोगे, then this can uncomplicated UTI can turn into the complicated one और फिर recurrence के chances बढ़ जाते हैं. In severe grade of UTI, there is going to be presence of increased frequency, urgency, उसके साथ साथ यूरिन में ब्लड भी आएगा जिसको हम कहते हैं हेमेटूरिया. Along with that, there is going to be flank pain, fever, high grade fever even. तो ऐसे केस में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना भी पड़ सकता है. देयर इज गोइंग टू बी नीड ऑफ एन इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स, उसके साथ IV पाइंट्स लगाने पड़ेंगे. बट डोंट वरी, यू विल गेट बेटर इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर ट्रीटमेंट ऑन टाइम. लेकिन अगर आपको सिवियर ग्रेड UTI हुआ है या फिर आपको बार बार होता ही रहता है, देन इनटू दोज केसेस यू हैव टू रूल आउट आपने प्रीवियसली ट्रीटमेंट का कोर्स कंप्लीट किया था या नहीं. सेकेंड, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी करा के बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कराना ज़रूरी है. थर्ड, आप डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक ग्रेड में फॉल हो रहे हो नहीं वो देखना ज़रूरी है. एंड फोर्थ, आपको किडनी स्टोन्स है या नहीं वो रूल आउट कराना बहुत ज़रूरी है. I have came across lots and lots of brands over Instagram where they are selling cranberry powders and juices and those fizz tablets. So cranberry controversy बहुत है. देखो, cranberry, blueberry या any type of berries, उनमें ऐसा होता है they are rich in tannins, okay? So they are going to help you up to certain extent by making urine alkali. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्रैनबेरी पे टूट पड़ो या वो टैबलेट ले लो. On the other hand, lots of powders and capsules which are available which claim it to be having cranberry in it, they are only having 5 or 10% of it. So rather than wasting your hard-earned money behind cranberry, make sure you visit the doctor and complete the course of antibiotic and treatment which has been prescribed to you. Please give this video a big thumbs up and make sure you share this with every single woman in your circle क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत बढ़ना स्टार्ट हो गई है. This is going to be really game changer for them. एंड अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे पीरियड क्रैम्प्स जो होते हैं हर महीने वो किस चीज़ की वजह से होते हैं, तो ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. मेक श्योर यू वॉच दैट वन आफ्टर दिस एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन फॉर श्योर. बाय.